Hello everyone, welcome to Synopsis IAS. I am Divyanshi Singh, selected as Deputy Collector in UPPCS 2020. Also, I have secured All India Rank 726 in UPSC Civil Services Examination. So इस लेक्चर में हम इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर में बायलेटरल रिलेशंस में कवर करेंगे इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस. सो दिस लेक्चर इज़ पार्ट ऑफ मेंस क्लासरूम प्रोग्राम. इसके अलावा जो भी कोर्सेज सिनॉप्सिस आईएएस पे अवेलेबल हैं आप उनके बारे में जानकारी पा सकते हैं बाय विजिटिंग वेबसाइट synopsisias.in. सो यहाँ पे आपको किसी भी कोर्स के बारे में जानकारी लेनी है जो भी अवेलेबल है सिनॉप्सिस आईएएस पे, जैसे कि फाउंडेशन कोर्स, टेस्ट सीरीज एट्सेट्रा, तो वो आप यहाँ पे जा कर के व्यू कोर्सेज में डिटेल्ड स्ट्रैटेजी, व्हाट ऑल टॉपिक्स विल बी कवर्ड, व्हाट इज़ द फीस स्ट्रक्चर, वो सब के बारे में जान सकते हैं. मूविंग ऑन टू द लेक्चर. सो अब हम इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की बात कर रहे हैं तो विल टॉक अबाउट सर्टेन एरियाज. वन इज द बैकग्राउंड ऑफ रिलेशनशिप, हाउ द रिलेशनशिप has evolved, right? So there are different phases in India Pakistan relations, like phase of active aggression, then phase of reconciliation, उसके बाद में phase of passive bilateralism is there, right? Then phase of renewed aggression. So these are different phases in India Pakistan relationship that we will talk about, right? Then what are the points, what are the points or areas of conflict between India and Pakistan, right? And then इनका impact, the conflicts which are there, उनका impact on India Pakistan relations, right? And then recent issues which are there in India Pakistan relationship, what are the recent issues and what should be way forward, what should be India's approach while dealing with Pakistan. So what can be the way forward that we will be discussing in this lecture. So moving on, when we talk about India Pakistan relationship, now there is changing political scenario of India with Pakistan. We'll talk about that later, but if we talk about how the relationship has evolved, right? Evolution of this relationship. Yeah. So if I talk about the evolution of relationship, so first is the phase of active aggression. So ये phase कब से शुरू हुआ? Since both the countries, India and Pakistan, it evolved from India only, right? After partition, we have seen 1947 के बाद both India and Pakistan got separated, right? So since then only this phase of active aggression started, right? So this phase started from 1947 and it continued till 2001. It continued till 2001. तो इस एक्टिव फेज ऑफ अग्रेशन में हमें क्या देखने को मिला? फेज ऑफ एक्टिव अग्रेशन में व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव सीन. सो द 4 wars दैट इंडिया पाकिस्तान हैड, it happened during this phase of aggression, right? So after partition, there was large scale of human migration that was seen from India Pakistan along the borders, right? And also large scale communal riots were also seen, violence were seen, right? Then in 1947 what happened कि Pakistan and its militia actually attacked over the Kashmir, right? And after fearing attack from Pakistan, जो वहाँ पे रूलर थे प्रिंसली स्टेट ऑफ कश्मीर के हरी सिंह, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया इंडियन गवर्नमेंट के साथ फॉर मिलिट्री हेल्प, राइट? देन इंडियन गवर्नमेंट इंटरवीन्ड और उसके बाद में 1949 में यूएन ऑब्जर्व्ड सीज फायर जो है वो दोनों कंट्रीज़ के बीच में हो गया, राइट? उसके बाद में व्हाट हैपेंड 1965 के में इंडिया पाकिस्तान के बीच में दूसरा सेकेंड वॉर होता है, राइट? इन विच अगैन यूएन मीडिएटेड और फिर सीज फायर होता है 1966 में, राइट? व्हेन
प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और जो भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, अयूब खान. सो दे एक्चुअली साइंड अ ताशकंद एग्रीमेंट, राइट. एंड जहाँ पर जो भी प्री वॉर सिचुएशन थी उनको वापस से रिस्टोर किया जाएगा. इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन बोथ द कंट्रीज वर रिस्टोर्ड, राइट. देन 1971 में लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश. सो यहाँ पर क्या हुआ था कि वेस्ट पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट थी दैट एक्चुअली रिफ्यूज्ड कि ईस्ट पाकिस्तान में जो अवामी लीग के लीडर है शेख मुजिबुर रहमान, उनको प्रीमियरशिप देने से मना कर दिया गया. सो दैट एक्चुअली लेड टू कॉन्फ्लिक्ट, राइट. एंड फाइनली इंडिया एक्चुअली सपोर्टेड द ढाका एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बांग्लादेश, राइट. एंड देन शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में 1972 में, एंड इट फाइनली लेड टू द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, राइट. उसके बाद 1970s में पाकिस्तान ट्राइड टू कैप्चर सेवरल एरियाज ऑफ सियाचिन, बट यहाँ पर भी ऑपरेशन मेघदूत जो है इंडियन साइड, इंडियन आर्मी ने किया. एंड देन इंडिया एक्चुअली रिकैप्चर्ड वट एवर सियाचिन ग्लेशियर था, इंडिया सिक्योर्ड द एरिया, राइट. देन पाकिस्तान की अलग अप्रोच भी थी. पाकिस्तान ट्राइड टू इंक्रीज इन्फिल्ट्रेशन एंड इंसर्जेंसी बढ़ाने की कोशिश की इन कश्मीर रीजन, राइट, बाय द पाकिस्तान. सो दे सपोर्टेड, प्रोवाइडेड वहाँ पर इंडिया में पाकिस्तान कश्मीर रीजन में दे एक्चुअली लेट लार्ज इन्फ्लक्स ऑफ मुजाहिदीन militants, right, that happened in Kashmir. So that was actually done by insurgency Kashmir Valley में, that was actually encouraged by Pakistan, right. Then 1998 में कारगिल वॉर होता है दोनों कंट्रीज के बीच में. So that was also a phase of aggression. So that was the fourth war. And finally there was an attack on the Indian Parliament. 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक होता है. That was done by लश्कर-ए-तैयबा and जैश-ए-मोहम्मद, right. So लश्कर-ए-तैयबा एंड जैश-ए-मोहम्मद जेम. सो इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक होता है. सो टेररिस्ट अटैक ऑन इंडियन पार्लियामेंट. सो दीज आर द फेजेस ऑफ एग्रेशन. 4 wars, right. Then trying to capture Siachen, also increasing insurgency, infiltration of militants in Kashmir, right. Then your attack on Indian Parliament. So this was the first phase of aggression, right. इसके बाद में there was second phase of reconciliation, right. phase of reconciliation. So इस फेज में क्या हुआ, ये फेज कब से कब तक चला, ये फेज चला 2001 से 2008 तक. अब यहाँ पर कई सारे जो है कोऑपरेशन वाले एग्रीमेंट्स होंगे, जैसे कि लाहौर डिक्लेरेशन. सो इट एक्चुअली रिस्टोर्ड द बस सर्विस बिटवीन द टू कंट्रीज, राइट. देन बोथ द कंट्रीज इन्फॉर्म्ड ईच अदर कि क्या मिलिट्री जो है एक्सरसाइजेस वगैरह करेंगे, मिसाइल टेस्टिंग वगैरह करेंगे, तो बोथ द कंट्रीज इन्फॉर्म्ड ईच अदर. उसके अलावा बोथ द कंट्रीज हैव एग्रीमेंट ऑफ नॉन एग्रेशन. सो यहाँ पे नॉन एग्रेशन का एग्रीमेंट था दोनों कंट्रीज के बीच में, राइट. सो उससे क्या था कि कोई कंट्री जो है नॉन न्यूक्लियर अटैक, कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री मतलब इंडिया पाकिस्तान आपस में न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे. सो दैट वाज अ नॉन न्यूक्लियर अटैक एग्रीमेंट, राइट, विच वाज साइंड बिटवीन राजीव गांधी एंड बेनज़ीर भुट्टो, राइट. उसके अलावा सार्क की समिट होती है 2004 में, राइट. तो यहाँ पे पाकिस्तान एग्री करता है कि पाकिस्तानी ज़मीन पे, पाकिस्तानी सॉइल पे कोई भी एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ नहीं की जाएंगी, राइट. देन 2008 में इंडिया पाकिस्तान दे एक्चुअली एंटर्ड इनटू एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जैसे कि तापी गैस पाइपलाइन, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया, ये गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट था. इसके अलावा कई सारे और ट्रेड रूट्स जो हैं दैट ओपन बिटवीन द टू कंट्रीज इन 2008. But this was the year which actually marked the end of this phase of reconciliation. How it marked the end of this phase of reconciliation? Because there was this Mumbai terror attack. So Mumbai terror attack के बाद में this phase of reconciliation got over, right? And phase of passive bilateralism began, right? So that Mumbai terror attack was considered to be
done and there was involvement of Pakistani intelligence, right? So यहाँ पर again relationship got suspended, and then we have this phase of passive bilateralism. Very low key engagement was there, low key interactions was there, right? Dialogue process जो था that was either suspended or very limited talks जो है वो इस level पे हो रही थी इस time पे, right? But when the new government actually came into power, the BJP government in 2014, there was a change of government in India after elections. So BJP government की policy थी कि we have this neighborhood first policy, right? Then also यहाँ पे इंडिया में जो ceremony थी, swearing in ceremony of the prime minister, so in that Pakistani prime minister was invited. उसके बाद Indian prime minister visited Pakistan, so that showed some kind of increasing engagement between both the countries, right? But then what happened? There was this again phase of renewed aggression. So ये कब से कब चालू हुआ? 2015 से अभी तक का जो फेज है, that is the phase of renewed aggression. Now why this phase of renewed aggression? क्यों हुआ ये? So one thing is China Pakistan economic corridor. So this China-Pakistan economic corridor, it passes through what? It passes through Pakistani occupied Kashmir, POK. And now this India considers as a threat to India's territorial sovereignty. Threat to India's territorial sovereignty. Right? So again, India is against this. India is against this China-Pakistan economic corridor project. उसके अलावा what happened? Bilateral relationship between the two countries deteriorated because of several terror attacks. Terror attacks which are state-sponsored terror attacks from Pakistan. So several attacks actually took place, जैसे कि 2015 में गुरदासपुर अटैक हुआ, 2016 में उरी अटैक था, राइट? देन 2017 में अमरनाथ यात्रा पे अटैक हुआ, 2019 में पुलवामा अटैक था, 2016 में पठानकोट अटैक था. So these are several attacks which were the state-sponsored terror attacks from the Pakistan inflicted on India. So again, this was against the spirit of bilateral relations. So यहाँ से bilateral relations खराब होने शुरू हो जाते. Then India also strikes back, right? India does what? Surgical strike करता है India. Most favored nation जो है status वो revoke कर देता है. And finally when India abrogates abrogation of Article 370, right? That actually led to stalling of the diplomatic relations between the two countries, further downgraded, further degraded, right? Because पाकिस्तान की पोजीशन है कश्मीर पे कि उसका पुराना स्टेटस जो है वो रिस्टोर किया जाए, whereas India abrogated Article 370. So again that has become a new point of conflict between the two countries, right? So we have talked about how the relationship has evolved, right? There are 4 phases of relationship. First phase is phase of active aggression, then there is a phase of reconciliation, उसके बाद there is a phase of passive bilateralism, and then there is a phase of renewed aggression, right? So these are the 4 phases. Now if we talk about what are the areas of conflict, what are the areas of conflict between the two nations? So अगर हम एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो देर आर मेनी, राइट? एक तो कश्मीर इशू ही है बिटवीन बोथ द कंट्रीज, राइट? सो पाकिस्तान हैज़ ऑक्यूपाइड सेवरल एरियाज ऑफ कश्मीर जिसको हम POK के नाम से जानते हैं. सो दैट इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन बोथ द कंट्रीज, राइट? सो दैट इज़ वन इशू. उसके अलावा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वहाँ पर आर्मी का इन्वॉल्वमेंट, उनका आर्मी का वेस्टेड इंटरेस्ट वो बहुत ज़्यादा है, राइट? सो दैट इज़ वन इशू. उसके अलावा पाकिस्तान में इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म इज़ वेरी हाई. क्यों इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म हाई है? बिकॉज डेवलपमेंट इज़ लैकिंग देयर, प्लस फाइनेंशियल बर्डन वहाँ पर इतना ज़्यादा है,
डेट जो है फाइनेंस इंटरनेशनल डेट फाइनेंशियल बर्डन दैट इज़ हाई ऑन पाकिस्तान, राइट, पॉवर्टी वगैरह ज़्यादा है, रीजनल प्रॉस्पेरिटी स्टेबिलिटी है नहीं, सो दैट इज़ वाई यूथ आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म, राइट, एंड देन आर्मी का एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट इन द पॉलिटिक्स दैट हैज़ बिकम अ इशू ऑन द पाकिस्तानी साइड, तो उसकी वजह से रीजनल पीस स्टेबिलिटी जो है वो यहाँ पे इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं, डेवलपमेंट का डेफिसिट है, एंड वेन एवर योर नेबर्स आर हैविंग डेवलपमेंटल डेफिसिट इशूज एंड डिफरेंसेस एक्चुअली अराइज, तो ये एक इशू है. उसके अलावा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इज अनदर इशू, राइट. इंडिया सेज दैट कि पाकिस्तानी सॉइल दैट इज बीइंग यूज्ड टू अटैक इंडिया, right, for terrorist activities that are targeting India, so again that is another issue. उसके बाद पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी भी है टू bleed India with 1000 cuts, right, तो यहाँ पे इंसर्जेंसी बढ़ाना, इन्फिल्ट्रेशन करना, so that is the doctrine, military doctrine of Pakistan. So cross border terrorism that becomes an important contentious issue between the two countries. उसके अलावा दोनों कंट्रीज़ के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं, राइट, बाउंड्री डिस्प्यूट्स जैसे कि हमारा LOC वाला रीजन है या फिर सर क्रीक वाला रीजन ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स, वेस्टर्न बॉर्डर्स, एंड देन देर इज़ ऑल्सो वाटर डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्रीज, इंडस वाटर ट्रीटी, उसमें वाटर शेयरिंग, सो व्हेनेवर दोनों कंट्रीज़ के बीच में बायलेटरल रिलेशंस जो हैं वो ख़राब होते हैं, सो अगैन देर आर टॉक्स की जो भी बायलेटरल जो टॉक्स है बाई एनुअल वाटर टॉक्स उसको जो है रोक दिया जाए. इट इज़ सेड दैट कि वाटर एंड ब्लड दे डू नॉट फ्लो टुगेदर, कैन नॉट फ्लो टुगेदर, सो अगैन यहाँ पर इशूज़ आते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाटर डिस्प्यूट. सो दीज आर सम ऑफ द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज़, और उनका इम्पैक्ट जो है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनका इम्पैक्ट हमें डिफरेंट रिलेशंस पे देखने को मिलता है एट सेवरल फ्रंट्स. सो इसका इम्पैक्ट हमको बायलेटरल रिलेशंस पे देखने को मिलता है ऑन सेवरल फ्रंट्स. सो अगर हम बात करें इकोनॉमिक रिलेशंस की, इकोनॉमिक रिलेशंस पे क्या इम्पैक्ट, सो अगेन जो बायलेटरल ट्रेड है बिटवीन द टू कंट्रीज दैट इज सीवियरली इम्पैक्टेड, राइट. ऑफन मेनी अ टाइम्स जो बायलेटरल ट्रेड है वो हैम्पर होता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस इंडिया ने हटा दिया पाकिस्तान का, राइट. सो बायलेटरल ट्रेड इम्पैक्ट होगा, सो अगेन इट विल लीड टू least economic integration between the two countries, and when there is least economic integration तो उसकी वजह से क्या होगा, there would be least regional integration, right. So we have seen that South Asian region is the least integrated region, right. Why? Because whenever there is suppose any connectivity project, so now India and Pakistan, they don't have good bilateral relations, so Pakistan adopts obstructionist approach. So when there is an obstructionist approach, obviously the connectivity projects, the trade related projects, they cannot actually be successful. So again यहाँ पर issues आते हैं, region is least integrated. Again World Bank की यहाँ पे report आई थी, a glass half full. So South Asian region is the least integrated region, right. Bilateral trade यहाँ पे regional trade that is among the lowest, right. So that should be, अगर आप इंट्रा रीजनल ट्रेड की बात करो, so that is not more than 5% of South Asia का total trade, right, while it accounts for 50% of total trade in East Asia and Pacific. So यहाँ पे जो इंट्रा रीजनल ट्रेड है that is very low, right. साउथ एशिया का जो टोटल ट्रेड है दैट इज इट इज़ ओनली 5% ऑफ साउथ एशियाज टोटल ट्रेड जो है वो आपको साउथ एशिया में देखने को मिलेगा, राइट. जबकि साउथ एशिया का जो टोटल ट्रेड है वो उसका 50% आपको साउथ ईस्ट एशिया के साथ देखने को मिलेगा, राइट. सो यू कैन सी दैट द डिफरेंस इज देयर, राइट. साउथ ईस्ट एशिया या फिर सॉरी इट इज़ विद ईस्ट एशिया. सो 50% साउथ एशिया का ट्रेड ईस्ट एशिया के साथ में है, बट साउथ एशिया का आपस में जो ट्रेड है दैट इज़ ओनली 5% ऑफ साउथ एशियाज टोटल ट्रेड. सो यू कैन सी द डिस्पैरिटी. सो दिस इज द लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन.
Then also because the both countries have mutual trust deficit, mutual trust नहीं है, right? And when there is no mutual trust, there is lack of mutual trust, so again there is arms race between the two countries. So arms race between the two country की वजह से क्या होगा? When there is increased arms race, तो उसकी वजह से resources diversify होंगे, resources diversification होगा, huge amount of resources will be spent on procuring military equipments, will be spent on the strengthening the security infrastructure. सो वो पैसा आप ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट के लिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए भी लगा सकते थे, बट देन आप नहीं लगा सकते बिकॉज यू हैव टेंशंस ऑन द बॉर्डर. तो नाउ यू विल बी इन्वेस्टिंग मोर ऑन डिफेंस. सो दैट इज़ वाई वी सी दैट द डिफेंस बजट ऑफ इंडिया इज सो ह्यूज, राइट? सो दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम. उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है. उसके अलावा अगर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, सो दैट एक्चुअली हैम्पर्स इंडिया की वेस्ट एशिया पॉलिसी, इंडिया की वेस्ट एशिया पॉलिसी, इंडिया की कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, राइट? बिकॉज पाकिस्तान इज एन इम्पॉर्टेंट रीजनल प्लेयर and Pakistan is also important for increasing connectivity with the Central Asian countries, with Afghanistan, with West Asian countries. So again India की जो external interest है they are actually hampered, right? So that is another issue. उसके बाद इंडिया पाकिस्तान के अच्छे रिलेशंस नहीं होने की वजह से there is no cooperation on several fronts like drugs का issue. So India is sandwiched between Golden Crescent and Golden Triangle. So यहाँ पे इंडिया becomes the victim of ड्रग स्मगलिंग. सो उसमें दोनों कंट्रीज आपस में कुछ नहीं कर सकते, राइट? फेक इंडियन करेंसी है, काउंटर फीट करेंसीज है अलॉन्ग द बॉर्डर्स, राइट? उसके अलावा आर्म्स, इलीगल आर्म्स का ट्रेड हो रहा है, इलीगल ट्रैफिकिंग हो रही है, राइट? कैटल ट्रेड हो रहा है, इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग है. सो दैट ऑल इज अनदर इशूज, राइट? बिटवीन बोथ द कंट्रीज, प्रॉब्लम्स बिटवीन बोथ द कंट्रीज. एंड अगर हम आज के टाइम में बात करें कि व्हाट आर द रीसेंट इश्यूज बिटवीन बोथ द कंट्रीज, सो रीसेंट इश्यूज में CAA, राइट? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. सो उसके टाइम पर जो भी रॉयट्स हुए थे, सो इट वॉज मतलब देर वर रिपोर्ट्स दैट देर वॉज इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाकिस्तान, राइट? इन दैट पाकिस्तानी एजेंसीज इन दैट. उसके अलावा अफगानिस्तान में जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, सो दैट मेक्स पाकिस्तान एन इम्पॉर्टेंट एंड अ मेजर प्लेयर इन दैट रीजन, राइट? सो अगैन उसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी होगा, right? So we have seen that when Russia receded from Afghanistan, so infiltration on the Indian borders actually increased. Now USA is receding from Afghanistan or receded from Afghanistan. So then there is a threat that India में terrorism or infiltration जो है that can increase, right? So that is other issue. उसके बाद में increasing cooperation of Russia with Pakistan, that becomes an issue. पाकिस्तान चाइना का जो एक्सेस है that is an issue for India. So these are recent issues between both the countries, right? So this you should know. अब यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि इंडिया के लिए क्या बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है. व्हाट कैन बी द बेस्ट पॉसिबल वे आउट फॉर इंडिया वाइल डीलिंग विद पाकिस्तान. सो वन इज द स्ट्रेटेजिक फील्ड में इंडिया क्या कर सकता है. इंडिया कैन डिफाइन द नेचर एंड स्कोप ऑफ आवर कॉन्फ्लिक्ट विद द पाकिस्तान, राइट? इंडिया को अपनी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन जो है वो इस्टेब्लिश करनी चाहिए, क्लियर कट. इंडिया को अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है दैट शुड बी मोर प्रिसाइज, दैट शुड बी मोर स्ट्रेंथेंड. इंडिया का इंटेलिजेंस नेटवर्क, राइट? इंटेलिजेंस गैदरिंग दैट शुड बी मोर कोऑर्डिनेटेड. उसके अलावा वाटर इश्यूज को बिटवीन बोथ द कंट्रीज दैट कैन बी रिजॉल्व थ्रू Indus Basin Treaty, right? You can resolve it through bilateral talks, through negotiations. So the issues which are solvable, the issues which can be solved, they should be solved through negotiations. उनको हमें linger on नहीं करना चाहिए, right? डिप्लोमेटिक लेवल पर इंडिया क्या कर सकता है. इंडिया पाकिस्तान पर प्रेशर बना सकता है, राइट? ताकि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर एक्टिविटीज़ जो है उसको छोड़े, राइट? सो इंडिया जो है, जो भी ग्लोबल पावर्स हैं या जिनके साथ पाकिस्तान के जो सपोर्टर्स हैं, राइट? पाकिस्तान के जो पार्टनर्स हैं, इंडिया कैन ऑल्सो सीक सपोर्ट फ्रॉम देम ताकि दे पुट प्रेशर. जैसे सऊदी अरेबिया है, सो इट कैन पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान कि वो वहाँ पर जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उन पर कंट्रोल कर सके, राइट? देन यहाँ पे हम पाकिस्तान के साथ ट्रैक टू डिप्लोमेसी कर सकते हैं,
राइट. बैक चैनल डिप्लोमेसी कर सकते हैं. पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट कैन बी एनकरेज बिटवीन द टू कंट्रीज, राइट. सो यहाँ पे बॉलीवुड को यूज़ कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को यूज़ कर सकते हैं, राइट, एंटरटेनमेंट को यूज़ कर सकते हैं बिटवीन द टू कंट्रीज टू इम्प्रूव द पीपल टू पीपल रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज, राइट. करतारपुर कॉरिडोर विच वॉज पे जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, सो अगैन दैट इज अ स्टेप इन पॉजिटिव डायरेक्शन. उसके अलावा इकोनॉमिकली इंडिया क्या कर सकता है टू पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान. अगेन यहाँ पे FATF के ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में भी पाकिस्तान को डाल सकता है. प्रेशर इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ में बेसिकली यहाँ पे इंडिया कोशिश करे कि FATF को आप ब्लैक लिस्ट में डाल दें. FATF की ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान को हम ब्लैक लिस्ट में डाल दें बाय दिस FATF. सो अगैन उससे क्या होगा, पाकिस्तान के लिए फंडिंग, इंटरनेशनल फंडिंग को एक्सेस करना मुश्किल हो जाएगा. सो दैट विल पुट इकोनॉमिक प्रेशर ऑन पाकिस्तान सो दैट वो अपनी ज़मीन पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को ना होने दे, राइट. उसके अलावा इंडिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस रिवोक कर दिया. सो इंडिया कैन ऑल्सो परसुएड अदर कंट्रीज टू डू द सेम. इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएं, पॉलिटिकल सैंक्शंस लगाएं ऑन पाकिस्तान, राइट. उसके अलावा इंडिया टेक्नोलॉजिकल फ्रंट पे क्या कर सकता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी को एक्वायर करे, थर्मल इमेजिंग, ड्रोन्स अलोंग द बॉर्डर. सो हमें अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करना है. सो बॉर्डर्स हम कैसे सिक्योर करेंगे? बॉर्डर सिक्योर करेंगे बाय इंश्योरिंग दैट वी हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट. तो हमें अपने एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है अलोंग द बॉर्डर्स, राइट. देन क्रॉस बॉर्डर फायरिंग को कंट्रोल करने के लिए वी हैव टू रिड्यूस मतलब दोनों साइड में सोल्जर लेवल पे एंगेजमेंट्स, कमांडर लेवल पे एंगेजमेंट्स को इंक्रीज करें. देयर कैन बी मोर कोऑर्डिनेशन, राइट. हेवी आर्टिलरी जो 50 किलोमीटर बियॉन्ड द जीरो लाइन है उसको विड्रॉ करें फ्रॉम बोथ द साइड्स, राइट. लोकल कमांडर्स जो है उनके बीच में बेहतर कम्युनिकेशन हो सो दैट मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो और उसकी वजह से सीज फायर वॉयलेशंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं जो वो ना हो, राइट. देन पाकिस्तान से जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इंडिया, व्हाट इंडिया कैन डू, इंडिया कैन इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ टेररिज्म. सो यहाँ पे इंडिया कैन जो सर्जिकल स्ट्राइक है दैट इज़ अ नाइस मूव, राइट, कि इंडिया कैन ऑल्सो इन्फ्लिक्ट ह्यूज डैमेजेस ऑन द पाकिस्तान साइड. सो इन्फ्लिक्ट कॉस्ट ऑफ टेररिज्म. उसके अलावा इंडिया अपना डिफेंस आर्किटेक्चर को स्ट्रेंथन करे, राइट. इकोनॉमिक मेजर्स ले, जैसे कि हमने बात किया FATF की ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में इंडिया जो है कोशिश करे कि पाकिस्तान को डाल दिया जाए सो दैट फाइनेंशियल जो इंटरनेशनल फाइनेंसेस हैं वो एक्सेस करने में पाकिस्तान को डिफ़िकल्टी हो. उसके बाद हम पाकिस्तान के ऑल वेदर एलीज से बात करें एंड अपनी कैपेबिलिटीज़ जो है काउंटर टेररिज्म की उसको बढ़ा सकें. सो अगैन कश्मीर में इंडिया जितना ज़्यादा डेमोक्रेटाइजेशन कर सकता है, यूथ को एंगेज कर सकता है, राइट, एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, यूथ का डी रेडिकलाइजेशन कर सकता है, सो दैट इंडिया शुड डू. उसके अलावा इंटेलिजेंस गैदरिंग में हम जितने ज़्यादा रिफॉर्म्स कर सकते हैं वो करें, राइट. देन डी रेडिकलाइजेशन करें, टेरर फंडिंग को मतलब एकदम से चोक कर सकें, दैट हैज़ टू बी डन, राइट. So this is required on India's part, right. तो यहाँ पर इंडिया के लिए वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? इंडिया शुड फोकस बोथ ऑन कंटेनमेंट एंड नेगोशिएशन, राइट. इंडिया शुड फोकस ऑन बोथ ऑफ दीज थिंग्स. इंडिया शुड ट्राई टू ब्रिंग नॉर्मलेसी इन कश्मीर. इंडिया कैन इंक्रीज पीपल टू पीपल एंगेजमेंट विद पाकिस्तान, राइट. तो यहाँ पे क्रिकेट डिप्लोमेसी, बॉलीवुड को यूज़ कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट चैनल्स को, राइट. एट द सेम टाइम हम ट्रेड को फैसिलिटेट कर सकते हैं बिटवीन बोथ द कंट्रीज, राइट. तो यहाँ पर बायलैटरल टॉक्स के थ्रू वी कैन ट्राई टू एंगेज विद ईच अदर इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, राइट. इंटरनेशनल फोरम्स में इंटरैक्शन विद बोथ द कंट्रीज कैन बी इंश्योर्ड, राइट. सो इंडिया can be done. So India should try and focus on both policy of containment and negotiation. So wherever India can negotiate with Pakistan, India will negotiate. Wherever there are कि इंडिया के इंटरेस्ट जो हैं वो हैम्पर हो रहे हैं तो हम वहाँ पर कंटेनमेंट की पॉलिसी को फॉलो करेंगे, राइट. सो इंडिया शुड वेट, right. India should wait and also we have to not sacrifice our own interest with respect to Pakistan and see कि किस तरीके से वहाँ पर से जो है रिएक्शन आ रहा है,
And then also India should be focusing on back channel diplomacy, track to diplomacy, cricket diplomacy, all of that, to engage people to people relationship improve karna. And also if there are cases where cooperation can be ensured between the two countries, so that should be done. So several forums hai, SARC hai, SCO hai, so these can be utilized to resolve the bilateral conflicts between the two countries, right? दोनों countries के बीच में शांति हो, peace हो, stability हो, long term peace and stability in the region, that will actually boost trade, that will boost connectivity, that is actually in favor of both the countries interest, right? So we should be focusing on resolving conflicts, and जो भी हमें मौका मिलता है, right? So India and Pakistan both should leverage that, right? We should move ahead with the जो भी हमारी पास्ट राइवलरीज है, एंड शुड फोकस ऑन अ पीसफुल रीजन, राइट? सो दैट दिस रीजन कैन बी मोर इंटीग्रेटेड ट्रेड वाइज ऑल्सो and connectivity wise also. But then India should also maintain its strategic autonomy, right? Its own sovereignty that India cannot compromise with. So India के जो भी stand है with respect to Pakistan occupied Kashmir, that India sees that it is a integral part of India, right? So that should be India cannot compromise on those fronts, right? And the actions of Pakistan, जैसे कि गिलगिट बल्तिस्तान, which was not one of the provinces, one of the 4 provinces of Pakistan, now Pakistan ने उसको अपना 5th province में include कर लिया है. So this is a step which is strongly criticized by India, right? क्योंकि India does not consider it to be part of Pakistan, rather than it is part of India, right? Then POK पे जो stance है India का, that is also clear कि it is India's part. So these are some of the issues which need to be resolved, but then India cannot compromise with its own strategic autonomy. So India should follow both the policy of containment, where our interests don't match, right? And also negotiate where our interests match, right? But India should not be always ceding and compromising. हमेशा हमें compromise नहीं करना है. So we should see the possible way out, and we should try to balance relationship, but then we have to see where our interests lie, and we cannot compromise with our own strategic autonomy, right? So this was it for this lecture. Thank you.